Hello, assalamu alaikum, good morning and welcome to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Air Sports and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. It's another day at the ICC T20 and today we've got two games in store for you. And today we're heading into Adelaide. क्या है आज के दो मैचेस आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. पहला मैच आप देख रहे हैं, ये है आज का पहला मैच. दिस इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड टेकिंग ऑन आयरलैंड. न्यूजीलैंड टेकिंग ऑन आयरलैंड. पिछला मैच न्यूजीलैंड हारी थी इंग्लैंड से. इस मैच को जीतना पसंद करेगी. 9 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में ए स्पोर्ट्स के ऊपर, 10 स्पोर्ट्स के ऊपर आप देख सकेंगे. और दूसरा मैच जो है वो है ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला अफगानिस्तान. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना ज़रूरी है कि अगर वो आगे जाना चाहते हैं. याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है इस वक्त और होम एडवांटेज भी इनके पास है. बट राइट नाउ दे लुक टू बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल. दैट बी एडलेड 1 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. ग्रुप के टेबल पे जरा नजर डाल लेते हैं कि सूरत हाल क्या है टेबल के ऊपर. ये रहा आपके सामने ग्रुप 1 सुपर 12 न्यूजीलैंड ऑन टॉप. 4 मैचेस 5 पॉइंट्स और बहुत बड़ा नेट रन रेट प्लस 2.23. इंग्लैंड 4 मैचेस के बाद 5 पॉइंट्स पे है लेकिन नेट रन रेट उनका कम है. ऑस्ट्रेलिया 4 मैचेस के बाद भी 5 पॉइंट्स पे है. श्रीलंका 4 के बाद 4 पे, आयरलैंड 4 के बाद 3 पे, अफगानिस्तान 4 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पे. नाउ इंटरेस्टिंगली ये ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को गौर से अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को अपना मैच जो आज अफगानिस्तान से खेलना है वो जीतना है ताकि वो 7 पॉइंट्स पे जा सके. लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच आयरलैंड से और अगर न्यूजीलैंड भी 2 पॉइंट्स हासिल कर लेती है तो उनका नेट रन रेट बड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा. And then England, of course, has a game as well coming up, which is a big game because they're going to be taking on Sri Lanka, and that will decide. So this group is still loaded. We don't know who's going to be in the semi-finals. Things will get clearer, I think, in the next 2-3 days. But that's how the ICC Men's T20 World Cup has been so far. With me in the pavilion, I've got the legends, the monuments of the game of cricket, the people who've served the game and Pakistan really well throughout their careers. It gives me great privilege and an honor to be sharing this pavilion with them the second time round. I've got with me the young, dynamic Shoaib Malik. Good morning and assalamu alaikum, Shoaib. With that, I've got Mr. Reliable, Mr. Dependable, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah. Wa alaikum assalam. The toe-crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar Younis. Assalamu alaikum, Waqar. Ji, wa alaikum assalam. And finally, the legend of all legends, the greatest of all time, the Sultan himself, Wasim Akram. Assalamu alaikum, Wasim. Good morning. Good morning, ji. Assalamu alaikum, everyone. Wasim, before we get on to आज के जो मैचेस इनके ऊपर बात करते हैं जरा. Yesterday, you know, we had a great victory. We couldn't really celebrate it. थोड़ी muted celebration थी हमारी. कुछ सूरत हाल ऐसी बन गई थी. But let's go back and reminisce about that game yesterday because कल से social media पे बहुत सारे जो fans वहाँ पर मौजूद थे, they've been sending in messages saying it was wonderful. The atmosphere was electrifying. Singing Dil Dil Pakistan throughout the ground. But also cricket pundits saying, well, look at Pakistan. This is what Pakistan can be. One day they can be defeated. The other day they can take out one of the strongest teams in the tournament. Yeah, it was a great performance. Good to see. And Pakistani crowd, not just in Australia, I think पूरी दुनिया में जिस passion से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता है, इवन हमारे टाइम में भी incredible. One of the best fans I think I've seen in any sport. So credit to all the fans of Pakistan cricket. And coming back to Pakistan cricket team, it was a great win against one of the strongest side in this tournament. And I think this will also give them a confidence as a team that the only thing they can do from here is to win their next game and see what happens. So far, I've seen stranger things happening in life. So if Pakistan somehow qualifies, and they are probably peaking at the right time as well, as we say in this tournament. Yeah. I hope it's not too late. But yesterday's game was really incredible. Although it was a tough night for me as well, heavy night for all of us. For all of us, yeah. मिसबा, ये जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं एक दफ़ा फिर दोस्तों. जस्ट टू रिफ्रेश पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं मैच समरी. जस्ट टू सी नाउ our middle order performed really well. So Pakistan batting first, 185 for the loss of 9 wickets. Iftikhar Shadab played a sensational innings yesterday, but it was the young Mohammad Haris who scored 28 off 11 balls that has really impressed everyone. And then Nawaz making an important contribution. Unfortunately, he was given LBW, which we're all still confused about, and so is he probably. Pakistan won this game by 33 runs, क्योंकि Duckworth Lewis method जो था वो apply हो गया था इसके ऊपर. But look at the bowling there. One bowling effort there जिसके बारे में हमने मेरा ख्याल है कल ज़्यादा बात नहीं की, is Wasim Junior. Misbah, he bowled really well as well yesterday.
आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जब से वो आया है टीम में, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग, विकेट्स ले रहा है और जो रिक्वायरमेंट टीम की होती है उस टाइम पे बॉलिंग कर रहा है, वो उस तरह की बॉलिंग कर रहा है। कल हालांकि मुश्किल कंडीशंस थी, जब बारिश हो रही होती है तो नॉर्मली फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आके बॉल करना अंडर प्रेशर। साउथ अफ्रीका को रन्स भी चाहिए थे और अटैक कर रहे थे वो, बट द वे ही जस्ट केम बैक एंड बॉल, और आखिरी ओवर भी उससे बड़ा जो आके किया वो भी बड़ा ज़बरदस्त, वो सबसे मुश्किल ओवर था क्योंकि उस टाइम पे वेट बॉल के साथ आउटफील्ड वेट है और उस तरह का ओवर करना, मार्जिन ऑफ विक्ट्री थोड़ा सा बड़ा मिला है पाकिस्तान को। तो ओवरऑल आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है और फिर राइट टाइम पे आके इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त है, ही इज़ बॉलिंग वेरी वेल। ऑलराइट, वकार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कल किसी ने रेज किया था एंड आई थिंक इट वाज इन आवर स्टैट पैक एज वेल। वो ये है सवाल कि हमारी टीम के अंदर वी सी अ लॉट ऑफ बॉयज़, लॉट ऑफ पठान बॉयज़, देर कमिंग इन फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना, रिजवान हो गए, शाहिन शाह अफरीदी हो गए, वसीम जूनियर हो गए, इवन मोहम्मद हारिस हो गए एंड ऑल, देर कमिंग फ्रॉम देयर। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न कि वो रीजन जो है पाकिस्तान का इज़ प्रोड्यूसिंग सो मेनी न्यू प्लेयर्स? I think it's a good thing. Yeah. You know, we all know that boys come from up north. It is they're strong guys. They come from the mountains and they वैसे उनकी इनबिल्ट भी स्ट्रॉन्गर होती है और जब पहले होता था फास्ट बॉलर्स मेनली पंजाब से या इधर से ही आपको नज़र आते थे, कराची से ऑड वन नज़र आता था, लेकिन अब ये देखने में आया कि जो players are coming from the north, which is great to see. So that means it's about 75% of players coming from KPK. Yeah, the talent is there. That means there's a lot of talent there, and cricket is expanding, and I think that is good for our country. Even under 19 में भी आप देखेंगे उधर NCA में भी जब कैंप्स वगैरह लगते थे तो जितने फास्ट बॉलर्स, जितने इवन जो हेल्पिंग हैंड जो बच्चे आते होते थे, and they were all come from, even Naseem Shah is a big example. We came from there, and then they live in hostels, and they're just crazy about the game, which is very good. You have to be really mad and crazy about the game to really go up at the top, and they are all talented, which is great. I mean, I would like to have more academies in that part of the country, because they are producing cricketers. They are producing cricketers. Misbah, sorry, Shoaib, I'll come to you for a minute. Why do you think that is happening, Misbah? Is it because they still have people playing physical sports, और जो दूसरे हमारे urban centers हैं वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंडोर की तरफ राग़िब हो गए? क्या वजह लगती है आपको? यही वजह है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप पेशावर की बात करें तो रिजवान और इसारा में बताते हैं कि वहाँ पे उस तरह की क्लब क्रिकेट होती है जैसे एक टाइम पे लाहौर में होती थी। ये सब जब वापस आते हैं ये क्लब क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि वहाँ जाके बैठ जाते हैं। नॉर्मल क्रिकेट पेशावर में हर टाइम टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं और इतने ज़्यादा ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि ये कई दफ़ा टूर्स से भी टीमें बना रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये वाला पैशन जो था ये शायद 90s में था लाहौर में क्लब क्रिकेट में। अगर आप PNT की बात करें, बाकी क्लबों की, मॉल्टन ग्रीन्स, लुधियाना जिमखाना, ये सारी वो टीमें, इसमें इंटरनेशनल 5-5, 6-6 इंटरनेशनल प्लेयर्स, 11-11 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स एक टाइम पे अच्छे खासे जो एक्सपीरियंस प्लेयर सारे खेल रहे होते थे और बहुत सीरियसली इनके जो कंपटीशंस होते थे क्लब क्रिकेट, बड़ी सीरियस किस्म के मैचेस होते थे। तो ये अब वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ पे वो लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट को जिस तरह कहते हैं कि उनको पैशन इतना ज़्यादा उसका, यही वजह है कि जितने ज़्यादा आपके टॉप के क्रिकेटर इन्वॉल्व होंगे नीचे क्रिकेट में उतने ज़्यादा आपके पास। Isn't it sad कि मिंटो पार्क में जितनी क्रिकेट हुआ करती थी या वो उस रीजन में जितने क्रिकेटर्स होते थे उसको वो ख़त्म हो जाना या वहाँ पे क्रिकेट ना होना, I think that has also damaged a lot, because a lot of cricketers have come from that area. It really has. Yeah. You see, when your governments, local governments or or state governments, when they certainly for certain ground है या grounds है, area है, अगर उसको वो बड़ा congested हो गया है, अगर उसको वो लेना चाहते हैं तो उसकी जगह आपको alternative grounds देते हैं कि जी आपकी ये clubs हैं, आप प्लीज़ इनको यहाँ पे ले जाएं। जहाँ मैं खेलता था लुधियाना जिमखाना से, कृष्ण नगर जिमखाना, PNT और
6, 7, 8 नेट लगते थे लाइनों के साथ साथ। जी 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 वो भी सुना है ग्राउंड खत्म हो चुकी हुई है, वो भी एमओ कॉलेज की ग्राउंड थी पुरानी, जी खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई हुई है। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली क्रिकेट काइंड ऑफ इज गॉन फ्रॉम कराची एंड लाहौर, लाहौर मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज जगह ही नहीं है खेलने के लिए। और इसीलिए अभी मैंने मुस्बात से मुझे पता लगा है कि पेशावर में क्लब क्रिकेट अभी भी बड़े धांसू तरीके से होती है। नहीं बहुत So सीरियस that's why these guys are good, and plus ये जो सारे केपीके से लड़के आ रहे हैं ना, इनमें हंगर बहुत ज़्यादा है, टफ बड़े हैं ये, फिजिकली, मेंटली। कराची लाहौर के लड़के मे बी they have too many options to do, you know, and plus you've got this now, इस पे बैठे रहो सारा दिन, and that's it, and these guys they don't believe in this. Well, this takes us to what Shoaib Malik used to say from पहले दिन से कह रहे हैं कि क्लब क्रिकेट और स्कूल लेवल और ग्रास रूट होनी चाहिए, एंड लोग जहाँ पे क्लब क्रिकेट थ्राइव कर रही है वहाँ से हम इतने सारे अपने मुल्क के लिए जो है वो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सॉरी तू खत्म कर, प्लीज आप बताएं। नहीं, मैंने यही क्वेश्चन पूछना था आप सबसे कि ये जॉब किसकी है? इट्स नॉट पीसीबीज जॉब इन अ वे, जैसे क्लब ग्राउंड ही खत्म हो गई है। सो हुज जॉब इज इट टू मेक श्योर द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान get their facilities, not just in cricket, in other sports too. Sports board, Punjab sports board. I think स्पोर्ट्स बोर्ड्स एक्चुअली सी दिस इज अ वेरी ग्रेव, आपने बड़ा अच्छा वकार बोला कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का वो है, बट अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स बोर्ड का जो रोल रहा है वो भी बड़ा ही नाकिस रहा है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख के अंदर। इवन हमारी ओलंपिक एसोसिएशन का भी जो है बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है उसकी भी परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी तो क्रिकेट जो है क्रिकेट तो अभी भी सेल्फ जनरेट करती है ना, अपनी जो भी फाइनेंसेस हैं और अपने उस पर केयर करती है। बाकी स्पोर्ट्स तो नहीं है इतने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं हैं, तो वो स्पोर्ट्स ज़्यादा सफ़र करती हैं। सो आई फील कि उनको ज़्यादा सपोर्ट की और उनकी बैकिंग की वेरी ट्रू, एंड दैट्स वो स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे आ जाता है, राइट? लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी हम क्लब की बात कर रहे थे। आई थिंक द अदर डे हम लोग ग्रीन रूम में बैठे हुए एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वो क्लब क्रिकेटर वो शोर मचा रहे थे कि जी हमने आज ही मैच खेला है क्लब का, और वो उन्होंने हर बच्चे से जो है कहा है कि अगर मैच खेलना है तो 500 रुपये फी बंदा जो है वो देगा, तो किराया देंगे आप क्लब का, तो आपको पिच मिलेगी, इसके ऊपर आप लोग खेल सकेंगे। एंड देन दैट उसी में ये सवाल भी था कि हाउ ये जो बेचारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं बच्चा 500 रुपये देना कि हम जो है वो फिर ये मैच खेल सकें? ये मलिक बताएं आप। मुझे ये लगता है कि मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि हम उस पर बात कर रहे थे। हम लोग की अब एकेडमीज़ जो है ना उसकी तरफ रुझान हो गया होगा, और बहुत सारी एकेडमीज़ हमें नज़र आती हैं। मैंने लाहौर में बहुत सारी देखी हैं और भी दूसरी सिटीज़ में देखी हैं। तो मुझे ये लगता है कि एकेडमीज़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन आप उन बच्चों के मैचेस करवाएं। मैचेस नहीं करवाते, वो सिर्फ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और चले जाते हैं। ऐसी है। स्किल आपको आ जाएगी, लेकिन प्रोसेस, रन्स बनाने वाला, आउट करने वाला, वो कभी नहीं आएगा। तो मुझे ये लगता है कि मैचेस करवाए जाएँ उनके भी, तो उसका ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और या आप खेल सकते हैं, वो भी आपके पास, या आप पढ़ सकते हैं। अब उसके ऊपर एक और एडिशनल प्रेशर आ जाए कि आपको पे करके खेलना है, तो वो कम होता जाएगा, जो हमारा पैशन है वो कम होता जाएगा। तो आई गेस ऐसी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि जहाँ पे ग्राउंड्स जो हो वो अवेलेबल हों, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, सारी स्पोर्ट्स के लिए जो है ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बच्चा जाए और वो वहाँ जाके अपना गेम इम्प्रूव कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वसीम, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ये कुछ 2016-17 की बात है। ये एक रियलिटी शो हम क्रिकेट का कर रहे थे और उसके ओपन ट्रायल्स हो रहे थे लाहौर में, जहाँ पे हमने नसीम शाह को भी पिक किया था। वहाँ पर एक लड़का आया हु वाज बॉलिंग लेफ्ट हैंडेड बॉलर, आई रिमेंबर, मोहम्मद वसीम, अब्दुल कादिर साहब मरहूम और जलालुद्दीन भाई, हम लोग खड़े हुए थे लाइन से वॉचिंग। तो अचानक कुछ पीछे से लड़के आके बॉल करते हैं ना, तो हम इधर देख रहे होते हैं बैट्समैन की तरफ। वो एक गेंद आया, वो अचानक हिला, तो हमने मुड़ के देखा, तो एक वेरी स्लिम जेंटलमैन, नॉट वेरी प्रेजेंटेबल, उसका गेंद था। फिर हम घुमा देखा, दूसरी दफ़ा उसने गेंद किया। उसने ना जो जूते पहने हुए थे, वो जूते जो थे वो टेप उसने लपेटी हुई थी, क्योंकि उसकी सोल जो थी अलग हो चुकी थी उसके बूट से, and he couldn't afford another pair of shoes, and he was bowling with that and bowling well. So we then मरहूम अब्दुल कादिर साहब पंजाबी में उससे कम्युनिकेट किया, तू कितने दा है, तो क्या है, क्यों, एंड देन ही आस्क्ड वन ऑफ द बॉयज़ कि क्या साइज़ है तुम्हारा, उस साइज़ का उसको ना उन्होंने कहा कि तुम ज़रा ये स्पाइक्स पहन के बॉल करो,
and then all of a sudden he became a different bowler. He was already very good, but then he became, you know, all of a sudden he was moving very differently and all and everything. And I felt, you know, कि there is so much talent that वो कहते हैं ना हाथ से रेत निकल जाती है, हमारे पास इतना कुछ है वो निकल जाता है, because there are so many opportunities that are not being plugged at the right time. नहीं मिलती. I think हमें अब मेरी जनरेशन जो है, जो मेरी उम्र के हैं 56, 57 ऑनवर्ड्स, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी अगर आप ओलंपिक्स के हेड हैं, अगर आप पाकिस्तान स्नूकर के हेड हैं, अगर आप पाकिस्तान रेसलिंग के हेड हैं, ऑल दी स्पोर्ट्स स्क्वॉश के हेड हैं, अपनी बारी लेके चले जाओ. जस्ट डोंट हैंग देयर. ये क्या चौधराहट का शौक है हमें कि मैं बस प्रेसिडेंट ही रहना है, पावे हुक बाय हुक एंड क्रूक. सो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है. Take your turn for 3-4 years and then move on. Very true. Very, absolutely, sir. और मुफ्त के ट्रिप बंद कर दो. अब 21वीं सदी आ गई है, वो क्या होता है मुफ्त का ट्रिप यार? I completely agree with that. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, it is the business of the ICC Men's T20 World Cup on the other side. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We have two games coming up for you today. The first game is New Zealand versus Ireland और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला अफगानिस्तान है. दोनों मैचेस बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. बट इससे बात करने से पहले अभी हम बात कर रहे थे, एक तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की और फिर वो क्लब क्रिकेट की बात आ गई कि केपी से इतने सारे क्यों क्रिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर. और जो शुएब पहले बात करते थे कि क्लब क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है. शुएब ने अभी ब्रेक में एक और बड़े अच्छा पॉइंट किया कि एक टाइम पे क्लब में कुछ क्लब्स जो थे, अकेडमी जो थी, वो बच्चों को पैसे देती थी कि जी अच्छा विल पे यू to come and play. And I remember I went to the Aleem Dar Cricket Academy in Lahore, Garden Town की साइड पे. उनका वो उनके 2-3 मुख्तलिफ नेट लगते थे. एक नेट लगता था डिफरेंटली एबल्ड लोगों का. सो म्यूट एंड डेफ जो थे वो प्लेयर्स, वेरी क्वाइट नेट गोइंग ऑन, वेरी सीरियस नेट गोइंग ऑन विद सुपर टैलेंट. सो आई आस्क्ड कि ये उन्होंने कहा जी ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड ऑल. एंड देन दे टोल्ड मी कि ये हमारी जो लड़कियों का एक एकेडमी है, नेट है, हम इन सब बच्चियों को पैसे देते हैं हर महीना देते हैं टू कम एंड एक्चुअली लर्न एंड प्ले क्रिकेट हियर विद अस एंड ऑल दैट. बट आई बिलीव कि वो भी चेंज हो गया शोएब. हाँ जी, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप के लोग जो है उनको क्लैरिटी होगी कि मुझे ये मेरे पास ये जॉब है और ये इतनी देर के लिए, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं और कंसिस्टेंसी भी आ सकती है. देखें, जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका जो ग्राफ है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, अप एंड डाउन उसका चलता रहेगा, एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी. तो आई गेस स्टेबिलिटी लाने के लिए जो भी लोग आएँ, उनका काम है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें हमारे बच्चों को कि जहाँ पे इवन पेरेंट्स जो हैं उनको भी श्योरिटी हो कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, उस पर सही काम हो रहा है. तो आई गेस श्योरिटी देना और ये जो अनसर्टनिटी है, इससे जान छुड़ाना जो है ना, वो उसका एक ही हल है कि आप जिन लोगों को लाएं उनको पता हो कि हम इतने टाइम के लिए यहाँ पे हैं और ये हम लोगों ने चीज़ें कर. फेयर इनफ जी वकार. और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो है कि आप एक पॉलिसी सेट कर लें, जो भी आपने करना है, जी क्लब क्रिकेट का हो या इवन टू इंटरनेशनल क्रिकेट या अकेडमीज, जो भी आपने पॉलिसी बनानी है उसको एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, एक उस पर बना लीजिए. और बनाने के बाद फिर उससे मूव नहीं करना आपने. अगर रजीम चेंज होती है या नया बंदा आता है या नया चेयरमैन या CEO whoever comes, उसको उन तोड़ के नहीं बनाना कि जस्ट बिकॉज यू थिंक इट इज़ राइट और यू ब्रिंग आउट योर आइडियाज़. क्योंकि वो जब आप नया हर चीज़ अपनी लाते हैं ना, अपनी सोच, तो फिर आप इसका मतलब है यू स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड देन एवरीथिंग गोज इन द डस्टबिन. सो बेसिकली जो भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो BOGs या क्रिकेट कमेटी जो भी है, अगर वो कुछ सेट करते हैं, पॉलिसी सेट करते हैं, तो जो भी नया बंदा है उसको फॉलो थ्रू करे. अगर फॉलो थ्रू नहीं करेंगे तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. So BOG जो मर्जी कर ले, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसी भी एसोसिएशन का या किसी भी बोर्ड का, डिसाइड तो प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं करना होता ना इन द एंड. सो वो तो इज जस्ट खाना पूरी टाइप. नो आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड आर, वो तो ये कि वोटिंग होती है एंड एवरीबॉडी हैज टू गिव अ वोट एंड द चेयरमैन हैज अ वोट एज वेल. क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन डिसाइड्स एवरीथिंग, व्हाटएवर मीटिंग यू डू. वेल देन दैट्स नॉट राइट. सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांस. पावर जब एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि अगर जी आपका जो भी डायरेक्टर है जिस उस पे फील्ड में या जिस साइड पे उसको लगाया हुआ है, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उससे पूछा नहीं जाएगा
कि ये क्लब क्रिकेट कहाँ गई, what happened to the club cricket, why are we not having that club? Then somebody should answer that. Same goes for international, same goes for academies. They all have to be accountable. Not कि जी ऊपर से आपको ऑर्डर मिल गया, आपने कर दिया है, at the end अब गर्दन आपकी कटेगी, उसको कुछ नहीं होगा, because you've been given that job. So basically ऊपर वाले लोगों को अपना काम करना चाहिए, फिर जिसको भी आपने जो काम दिया है, let him do it. गिव हिम टाइम, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में 4 साल होते हैं. अगर आप समझते हैं कि 2 साल देने, 3 साल देने, देन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस असेस करिए और उसके बाद या उसको गुड बाय करिए और बंदा जो नया लाए उसको पॉलिसी उसी पे ही चलाएं. Don't change the policy. Yeah, I completely agree with you. ये जो consistency of policy है हर चीज में, वो क्रिकेट बोर्ड हो, मईशत हो, जो भी चीज हो उसके अंदर वर्ल्ड में होता है. बिल्कुल ऐसे ही. और जब आप घर से निकले तो अपनी ईगो घर छोड़ के आए, क्योंकि अगर आपने अचीव करना है, किसी को कुछ सिखाना है, तो ईगो घर पे छोड़नी पड़ेगी. वो तो कुछ उन्मुख ही चल गई है. उसी क्रिकेट चला लो. That's a news, isn't it? Yeah, that's a strange news that Very happened. strange. Grown up. Yeah, people. Just very Grown strange up or news. grow up? Yeah, both actually. All right, let's get to the business at hand. It's the ICC Men's T20 World Cup. Let's talk about what's happening in Australia. आज 2 मैचेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया. न्यूजीलैंड बा मुकाबला आयरलैंड. ये आज का पहला मैच है, 9 बजे शुरू होगा. बराह रास्त आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे यहाँ पर ए स्पोर्ट्स पे और 10 स्पोर्ट्स पे. और दूसरा जो हमारा आज का मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का. ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये पहला मैच आप देख रहे हैं. न्यूजीलैंड बा मुकाबला आयरलैंड एडलेड से 9 बजे आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. और दूसरा मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है. ये भी एडलेड में है. ये दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे जो है वो शुरू होगा. इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, चूँकि ये ग्रुप 1 के अंदर डिफेंडिंग चैंपियंस मिसबा बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके के साथ फंसे हुए हैं. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उनके लिए. एक तो पहले ही उनका तकरीबन 50 रन का डिफरेंस है इंग्लैंड से. 50 रन से उन्होंने या 50 या 50 रन से उन्होंने जीतना है. फिर उनके सामने सबसे बड़ा जो मसला वो ये है कि उसके बाद वो जो गैप है उसको तो वो ख़त्म कर देंगे. देन दे हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि इंग्लैंड कितना इम्प्रूव कर सकता है अपने उस मैच में. अगर वो 30 रन से जीत जाते हैं तो वो भी उनको जहन में रखना है, जो भी मार्जिन है कि वो भी हमने कवर किया. बेसिकली ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि फिर असं ना ही समझिए. ऑस्ट्रेलिया मस्ट विन बाय 50 रन मार्जिन टू कैच अप विद इंग्लैंड. और अगर इंग्लैंड अपना गेम सिर्फ 5 रन से भी जीतती है तो भी वो ऑस्ट्रेलिया से आगे. उन्होंने जहन में रखना है कि वो मार्जिन भी उन्होंने जहन में रखना है कि कितने रन से इंग्लैंड जीत सकती है. उनको उसको मैचअप करने के लिए वो भी उन्होंने क्वेश्चन रखना है कि हमने इतने मार्जिन से जीतना है कि इंग्लैंड उतने मार्जिन से ना जीत सके उनसे और हम पहुंच जाएं. तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो यही सोच रही होगी कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए आज का. आयरलैंड अपसेट कर सकती है ताकि ऑस्ट्रेलिया कम से कम अगला मैच जो है थोड़ा तसल्ली के साथ खेले कि हम सिर्फ पॉइंट्स लेके आगे पहुंच जाते, क्योंकि इंग्लैंड का मैच बाद में बिल्कुल ऐसे उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते. और ये एक एडवांटेज है इंग्लैंड को. नो डाउट कि वो आसान मैच नहीं है श्रीलंका के अगेंस्ट, बट ऑस्ट्रेलिया जब आप किसी भी ऐसी पोजीशन में फंसे होते हैं कि आपके बाद वाली की टीम जो खेल रही है उसके हाथ में कंट्रोल है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. जैसे कि हम लोग भी फंसे हुए हैं. इंडिया का लास्ट मैच है ये हमारा तो फिर भी एटलीस्ट ये है ना कि हमने अपना मैच जीतना है और हम दूसरी टीमों पे ही डिपेंड कर रहे हैं. हम खुद से जो मर्जी कर लें, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे लिए कि हमने अपना मैच जीतना है. एंड देन दोनों में से कोई भी टीम हारेगी तो हम पहुंच जाएंगे. लेकिन उनका ये है कि वो जीतेंगे और नेट रन रेट भी उनके हाथ में है. तो वो और ज़्यादा आपको मेंटली जो है वो कंफ्यूज कर देती है चीज़. और कई दफ़ा आप एक अफगानिस्तान जिसके अगेंस्ट आप फेवरेट्स हैं, कई दफ़ा आपका मैच ख़राब भी हो सकता है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वसीम. इसी पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स बिग टीम, डिफेंडिंग चैंपियन, और अफगानिस्तान से उनका मैच है. The best chance for Australia to qualify is beat Afghanistan and expect, जैसे मिसबा ने कहा, श्रीलंका to beat England, or beat Afghanistan by 70-80 runs and then hope that England do not beat Sri Lanka by 20-30 runs. So it's not complicated at all. इसमें एक चीज़ करनी चाहिए. Usually what you do, you bat second. जब आपको ये नेट रन रेट का हो, तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, अफगानिस्तान के पास. और सम टाइम इन चेजिंग इट बिकम्स टफ. जहाँ आपकी 2-3 विकेटें ऊपर नीचे जाती हैं, तो बेहतर ये है कि
एक स्टेप अहेड रहना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो आप 200 लगा के 100 रन पे आउट तो करना आप ये चाहिए। कह रहे हैं कि जो सिक्का भी है वो भी आपकी तरफ गिरना चाहिए। नहीं, वैसे भी अफगानिस्तान मुझे लग रहा है टॉस जीत के उन्हीं को खिलाएगा। ऑस्ट्रेलिया को भी यही करना चाहिए, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। Not a great tournament, disappointing actually campaign for Afghanistan. We thought कि वो करेंगे, but I think the main worry was in this World Cup we've seen their batters. किसी भी एक बैट्समैन ने 40 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया। So जब ये आपकी सिचुएशन आ जाए एज अ टीम, सो ऑब्वियसली रन्स ऑन द बोर्ड नहीं है, तो जितनी मर्जी अच्छी स्पिन बॉलिंग आपकी हो जाए आप, और उनके फास्ट बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया है, दोनों लेफ्ट आर्मर्स ने। इवन हमारी अपनी एशियन कंडीशंस में जहाँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं और स्पिनर्स हैं उनके पास, वहाँ पे भी अफगानिस्तान कभी किसी जो टॉप की टीम्स हैं उससे मैच नहीं जीती। द रीज़न वही है, आपकी बैटिंग भी है और दूसरा आपको वो सेल्फ बिलीव नहीं है। जैसे ही आप सामने अपने से हाई रैंक टीम के साथ खेलते हैं तो आपको वो लगता नहीं है कि मैच अगर आपके हाथ में आता भी है तो कहीं ना कहीं आप उसको खुद, वो टेम्परामेंट नहीं है उस तरह का, वो फिनिश नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये इट्स अ बिग वरी फॉर देम कि उससे कैसे निकलना है हमने। वो ये एक स्टेप आपने आगे जाना है वहाँ से, किसी बड़ी टीम को 1-2 मैच हराने हैं जैसे बाकी टीमें कर रही हैं। तो वो अभी तक अफगानिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप में नहीं किया। आई थिंक ये सबसे बड़ा एक मसला है जो वो लेके जाएंगे यहाँ से। विल बी होपिंग कि आखिरी मैच है, हम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर जीत सकते हैं, वो पहला कदम हमारा जो है ना टूवर्ड्स दैट कि हाँ जी बड़ी टीम को हरा सकते हैं वो हो। और ऑस्ट्रेलिया के इंजरी कंसर्न्स भी हैं जी, बोले Aaron Finch and Tim David. I think hamstrings are stiff or maybe stiff. Yeah, that's what he said. Remember? जो भी हम लोगों ने अपसेट्स देखे हैं वो इसी तरह हुआ है कि कंडीशंस जो है, आप टॉस हार गई है बड़ी टीम और वो एकदम उनके ऊपर नीचे आउट हो गए हैं, तो एसोसिएट टीम्स जो हैं उन्होंने इस तरह के अपसेट किए हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच क्रंच सिचुएशन में जाता है, यू कुड सी द डिफरेंस कि जो बड़ी टीम्स होती हैं वो क्रंच सिचुएशन में ना मैच को नहीं जाने देती। तो यही फ़र्क है जो एसोसिएट्स का और बड़ी टीम्स का। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। देखें ऑस्ट्रेलिया एक तो रन रेट बेहतर करना है, फिर उनके दोनों ऐसे बैट्समैन जो कि डैमेज कर सकते हैं टीम को दूसरी को, टिम डेविड और एरन फिंच, उनकी फॉर्म भी वापस आई है, वो नहीं होंगे, दो उनकी जगह नए प्लेयर आएंगे। तो आई थिंक ये भी उनके लिए एक मसला होगा विद दैट कि इन फॉर्म या वो जो उनके अच्छे स्ट्राइक रेट्स वाले 2 बंदे जाएंगे, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए। हाँ, ये भी है, you never know. It can go either ways. Waqar, Rashid, he's been such a major component of the Afghanistan squad. ये उनका होम ग्राउंड है एडिलेड, ये चूँकि एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए वहाँ पर खेलते हैं, एंड 29 T20s के अंदर 44 विकेट्स ले चुके हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर्स एक्चुअली इन दिस ग्राउंड, पीटर सिडल के बाद। How valuable is that stat? That's a good stat. That's a good and stat. you read it beautifully. ये ले खत्म हो गया। खत्म हो गया। देखिए ये मैं उनको बोलूँगा कल से मेरे पास नहीं आना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट, बिग डिफरेंस। चाहे आप जितना भी कह लेना जी बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है ऑस्ट्रेलियन का और इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका का, और जो भी आप कह लें, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आपके प्रेशर्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपका स्टाइल ऑफ प्ले, आपके प्लेयर्स जो आपके साथ खेल रहे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। सम आर वीक, स्पेशली एसोसिएट्स में जो आपके दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो उतने अच्छे सम टाइम नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, तो आपको ये इश्यूज आते हैं। दैट इज गॉट अ मैजिक नंबर देयर। आई मीन 44 विकेट्स एट एडिलेड। एडिलेड की पिच इनको सूट करती है, सूट करती है, बट आई वुड से कि यस, ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों में। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये भी कहना पड़ेगा कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन थिन आइस, ऑस्ट्रेलिया को मार्जिन बड़े से जीतना है, सो देर इज़ मोर चांस दैट दे विल मेक मोर मिस्टेक्स ऑल्सो गोइंग इनटू इट। और स्पेशली जब आपके 2 स्पिनर आपके वर्ल्ड क्लास हों, एंड इफ दे आर गोइंग आफ्टर देम ट्राइंग टू विन अ गेम बाय 70-80 रन्स, you can slip. It can go the other way. It can. The highest score by any Afghanistan batter in this World Cup is 32. Not good, Misbah. आखिरी पैरा बच्चे सी वही पढ़ता है।
पता नहीं कोई एक वर्ड ढूंढते हैं, शायद कोई मिल जाए जो इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये आखिरी सभा है अभी। मैं आ जाता हूँ स्टार के छोड़े पे। आप अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग, बैटिंग में बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे आज। आप पहले अफगानिस्तान की बैटिंग कमिंग में आर बात कर रहे हैं। एक्सपेंसिव इन दिस T20 वर्ल्ड कप। मैंने सबक पढ़ना शुरू कर दी। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर ने सिर्फ 2 विकेटें ली है। मैं बैटिंग का सवाल आपसे किया था कि सिर्फ 32 हाई स्कोर रहा है, उनकी बैटिंग की बड़ी कंसर्न्स है। आखिरी दफा पढ़ दूं फिर वापस जाते। आप पढ़ ले पहले। आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। उनका जो बड़े टूर्नामेंट्स जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं, बैटिंग में उनके इश्यूज उसी तरह चल रहे हैं। गुरबाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में अभी तक वो नबी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर दैम। वो गुरबाज अगर रन्स लंबे करते हैं तो फिर कहीं जाके ये 130-40 करते हैं। तो 130-40 पे इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन इब्राहिम जो है, ये अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये उस तरह का ये स्टडी खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी दे रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ये खेल ही नहीं पाते थे। बट ओवरऑल जो वो T20 की इनिंग चाहिए वो सिर्फ गुरबाज उनको दे रहा है और वो डेंजरस प्लेयर है। वो ऐसा प्लेयर है कि जो 30 बॉलों पे 50 या 60 भी कर सकता है। कोई और बैट्समैन उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा T20 के लिए कि वो 160 तक किसी तरह पहुंच सके। एंड दैट्स द रीज़न कि इन कंडीशंस में जहाँ स्पिन बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर पाते। नजीबुल्लाह ज़दरान जो है ना, वो मिडिल में आगे नहीं रन्स बना रहा, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अगर उनको स्टार्ट भी मिल जाए गुरबाज की तरफ से, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वो ज़दरान पे, वो उस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनका जो टारगेट है वो 150 के पास नहीं जा रहा है। तो अगर वो परफॉर्म करेंगे मिडिल ऑर्डर में से, तो मुझे लगता है कि ये 150-160 तक बड़ी जा अपॉर्चुनिटी भी जाने दी है जब इन्होंने श्रीलंका से दे could have won that game, but Rashid and both of them, both the spinners, they didn't bowl well. That was a bad day for the bowlers over there. इन अजीब की बैटिंग भी देख लेते हैं, जरा स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। ही इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। He's a good cricketer, no doubt, but obviously pitches मुश्किल है वहाँ पे, और ये उनका जैसे शोएब ने भी बताया कि मिडिल ऑर्डर में वो इस पर डिपेंड करते हैं और इसका कोई खास वर्ल्ड कप अभी तक गया नहीं। इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर, नो डाउट, but I suppose he has to step up today. Yep, everybody has to step up, and we have to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the Airwise app. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. हम लोग बात कर रहे थे, आज 2 मुकाबले हैं एडलेड में, और इससे पहले कि हम मजीद आगे चलें, ज़रा पिच के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। We've got the pitch report brought to you by Ensure. But there you have it. It's a freshly dropped in pitch, grass on it, and it's hard runs to be had. ये थी pitch report. मिसबा, घास ही घास। आपका तो दिल खुश हो गया होगा। पिछला ने कहा है मेरे कान में ये कितने मिलीमीटर का छड़े हैं? She said something like this, did she? उन्होंने कोशिश किया है कि अफगानिस्तान जो है ना वो परेशान ही रहे, स्पिन हो यहाँ पे। Fresh pitch too. क्योंकि जब हार्ड हो और इस तरह का ग्रास हो तो फिर बॉल स्पिनर का नॉर्मली स्लाइड करता है, उसका ग्रिप होने का चांस बहुत कम होता है। साइड बाउंड्रीज भी छोटी हैं। आई थिंक अफगानिस्तान के लिए ज़रूर एक टेस्ट होगा, और ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी ऑप्शन होगी कि वो उसको छोटी बाउंड्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, स्पेशली जिस तरह वो स्विच हिट्स मार रहे हैं, साइड्स पे स्वीप खेल रहे हैं। तो आई थिंक इस बाउंड्री पे आप स्पिनर्स के अगेंस्ट आपके पास वो ऑप्शन एक बात तो माननी पड़ेगी, जब ये हूवर दिखाते हैं पिच का, उसे हूवर कहते हैं, जो पूरा वो दिखाते हैं, लुक्स गुड। इट डजंट लुक लाइक ड्राई हॉरिबल। I mean, ठीक है, बैट्समैन को शायद ना ही अच्छा लगे, but as a bowler, when you see a pitch like this, it feels good. It's a good cricketing pitch. Well, talking about bowlers, Wasim, the Australian fast bowlers, especially Stark and Cummins, ये struggle कर रहे हैं। 3 मैचेस के अंदर जो है वो स्टार्क ने 102 और कमिंस ने 110 रन दिए। कैसा स्टैट दिया है? Very good. यही लिखा हुआ। ये आखिरी सफर रह गया सीधा। This was actually the last line. नहीं वो खत्म हो गया। मैं वसीम भाई, ये पीछे से आ रही है इन्फॉर्मेशन। नहीं है, इधर लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। यही मैंने बताना था कि सबको पता चले। शार्क ने अभी तक 3 विकेटें ली हैं
8.5 की औसत से और कमिंस ने भी 3 विकेटें ली, आखिरी लाइन में 9.16 की बढ़ औसत से आप दोनों के ना 33 नंबर्स आ गए हैं। पास हो गए दोनों। पास हो गए आप दोनों। Yeah, there'll be a worry for them though. The Australians, the main bowlers, Cummings तो पूरा साल से I suppose he's struggling with in T20 format. But Mitchell Starc का जरा 8.50 स्ट्राइक रेट, हालांकि विकेट टेकिंग बॉलर है, बट आई थिंक पहले मैच ने इनको धर्म भरम कर दिया है। पहले वाले की जमा कर दिया। जमा करती है। वो इसलिए वसीम भाई कि मिचेल स्टार्क जो है वो फुल बॉल करता है और उसको जो है ना अटैक करने जाता है, जिसकी वजह से जो बैट्समैन उनको मोस्टली अच्छा खेलते हैं अंदर आते हुए गेंद को, वो उन पे रन्स बना रहे हैं। तो यही हो रहा है। और वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो डिस्कशन में रहती है जब दूसरी ऑपोजिशन मीटिंग करते हैं, और वो यही डिस्कस करते हैं कि यार इसको ज़रा सामने खेलना है, क्रॉस नहीं ज़्यादा खेलना, जिसकी वजह से आप आउट ना हो। तो वैसे ही जब आप आगे बॉल करें तो चांसेस होते हैं। So he's also अलेकाफ शाहीन आफरीदी, वो भी नया बॉल से ही कोशिश करता है कि मैं 1-2 विकेटें ले लूँ। उसने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जिताए हैं इस फॉर्मेट में। लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी वो वाली लेंथ कर नहीं रहे, एटलीस्ट कल तो उन्होंने नहीं की वकार में। अच्छी बात है। हाँ, It's good. Honestly, on a serious note, I think it's good that he's learning. Yeah. कि sometimes जब बॉल नहीं स्विंग हो रहा या रिदम नहीं आया हुआ या आपको पास वो जो आप करते रहे हैं वो नहीं हो रहा, do something different. You know, stick to the team plan. Team plan ये होता है कि बैक ऑफ द लेंथ, यहाँ के पिचेस पे थोड़ा सा जान होती है, ग्रास है, तो गो बैक, लेंथ को थोड़ा पीछे खींच लेंगे तो it will be much better for you. So I think he's done well yesterday. मुझे ये लगता है कि इनका जो दोनों स्टार्क और कमिंस का है कि वो जो प्लान ए है उससे जब इनको मार पड़ती है या वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन नहीं है उनके पास। जैसे स्टार्क फुलर बॉल करते हैं, वहाँ कोई भी अच्छा खेलना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका वो सेकंड ऑप्शन उनके पास वो लेंथ बॉल वाली उस तरह नहीं है। कमिंस लेंथ बॉल करते हैं और उसके बाद उनके पास जो फुलर लेंथ है, इवन एंड के ओवर्स, डेथ बॉलिंग वो उस तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर उनकी इकोनॉमी और हेजलवुड और पैट कमिंग्स अगर इनकी लेंथ देखें तो मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन फ़र्क जो है वो ये है कि पैट कमिंग्स का बॉल राइट हैंड बैटर को अंदर आता है, लेकिन जॉश हेजलवुड का बॉल बाहर निकलता है। तो इस वजह से जॉश जो है उनको कम रन इस वजह से हो रहे हैं। और अगर देखें द मोस्ट डॉट बॉल्स जॉश हेजलवुड बोल्ड सो फार इन दिस वर्ल्ड कप, तो यही वजह है कि उनका बॉल लग के बाहर निकलता है और पैट कमिंस का बॉल लग के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से रन बन रहे हैं। Well, we wish both Australia and Afghanistan all the best. ये दूसरा मैच है जो आज का आपकी खिदमत में पेश होगा। बात करते हैं जो आज का पहला मैच है जो इस पिच के ऊपर खेला जाएगा, और वो है न्यूजीलैंड बामुकाबला आयरलैंड। Ireland known to be the giant slayers, and Ireland have already committed a couple of upsets in this campaign of theirs. How is this match poised? Is it evenly poised? Can Ireland upset New Zealand? Is New Zealand under pressure? Waqar? It will be difficult for Ireland to upset New Zealand. New Zealand is one of the favorites in this World Cup. सिर्फ ये है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई और पिच तो हमने देख ही लिया है कि फ्रेश पिच है, अगर थोड़ा बहुत सीम मूवमेंट हुई, जो उस दिन नीदरलैंड ने बताया कि अगर थोड़ा बहुत मूव हुआ गेंद और अर्ली विकेट्स मिल गई, क्योंकि उनके ऊपर के बैट्समैन बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं ये लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं तो देन मे बी एंड दैट्स अ वेरी स्मॉल चांस कि आयरलैंड माइट just sneak in, because New Zealand is a very professional side. Yeah, totally. New Zealand are the favourites here for Shoaib, what do you think for New Zealand batters? Because Ireland की हमने देखा अभी तक जो बैटिंग है वो भी काफ़ी it's not, you can't just write them off. They can actually come and deliver a serious blow. बिल्कुल है, और उसमें एज वकार भाई सेड के अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, जैसे वी हैव सीन के बिट ऑफ ग्रास ऑन द पिच, तो उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। और वैसे भी आयरलैंड को चेज़ करना अच्छा लगता है, और उन्होंने देखा, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने चेज़ किया है 2-3 दफ़ा, तो यही एक ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज न्यूजीलैंड टीम इज़ way too strong for Ireland. New Zealand team way too strong, and we've got Sodi with us right now. Let's listen in. Right, there you have Sodi, and with that we're going to take a break right here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and Sports. I've got
Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram with me. We're talking about the two games that are coming up. The first one up is New Zealand versus Ireland, and then it is Australia clashing with Afghanistan. अभी हम ये बात कर रहे थे न्यूजीलैंड और आयरलैंड की मुकाबले के बारे में. न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फेवरेट्स हैं इस वक्त. लेकिन Waqar, let me ask you this. You've been saying that your dark horse, the team that you've really been focusing on, is South Africa. What do you think about that after yesterday's performance by South Africa? देखिए T20 क्रिकेट में तो ऐसा होगा. आई मीन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से फटकाया है वो भी आपके सामने है. सो ऐसा T20 में होगा. सो मैं सिर्फ इसलिए उनको कहता हूँ कि उनके पास सोर्सेज जो हैं वो दे हैव गॉट द सोर्सेज, दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन विन दैम गेम्स. आई मीन अनफॉर्चुनेट था उनके लिए मिलर्स नहीं कल खेल रहे थे. You know, the ballers were not really, the ballers were still in Perth zone, I think, जो उन्होंने कि उनकी लेंथ नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पिच से, वो यही सोच रहे थे कि शायद वो पर्थ पे बॉलिंग कर रहे हैं और बॉल फ्लाई करेगा. आई थिंक दे नीडेड टू जस्ट change that mode, and I'm sure they have learned from that. I still back that team. I think they're a very fine side. There are all the teams अब जो ऊपर जाएंगी वो आपको देखेंगे कि सारी की सारी वेल प्रिपेयर्ड भी होंगी. पिचेस भी अब अच्छी हो जाएंगी क्योंकि एडिलेड, मेलबर्न, दे टू वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे पिचेस बेहतर हैं बाकियों से. तो we're gonna really see some quality cricket in the coming future. All right, we've got Tucker from Ireland. Let's listen in. Right, there you have that now. Question is, what do we do? You win the toss and do what, Ms. Shoaib? You win the toss, you bowl first. Yeah? Yeah. Why do you think? I think we've seen some grass on the pitch, and I guess it's a fresh pitch. तो I guess दोनों के पास जो है अटैक अच्छा है. Mostly seamers हैं तो advantage हो सकता है. ऐसे भी है. एक चीज़ वसीम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई टॉस जो है वो ज़रा ख़ास तौर पे ऐसी पिचेस पे जहाँ पर बड़ा वन साइडेड अफेयर हो जाता है, यू नो, विन द टॉस एंड यू विन द मैच काइंड ऑफ सिचुएशन पे, तो वो वहाँ पर कहते हैं कि कोई जिस तरह फार्मूला 1 में होता है वो पोल पोजीशंस आपको दे देते हैं. यू नो, यू गेट टू समथिंग इंस्टेड ऑफ just tossing the coin. Toss is for me, it's kind of a beauty of the game itself. And sometimes a subcontinent में ड्यू फैक्टर होता है T20 फॉर्मेट में, तो टॉस वहाँ भी मैटर करता है. 80% 90% टीम वो जीते हैं, टॉस जीते हैं. So अगर रेटिंग से आना है, so it's gonna be a bit complicated. I think it's a simpler way, and I enjoy the toss. It's tension before the toss. हमारे भी टीम्स के अंदर भी देख रहे होते हैं कौन टॉस जीत रहा है, क्या करना है. You know, आजकल तो कॉइन कितनी दूर जाके गिरा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. We've got both the captains going out there for a toss. Let's go and listen in. तो जनाब खबर, आयरलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. गुड टॉस टू विन, मिसबा. आई थिंक अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं वो. उनकी बैटिंग काफ़ी एंड तक जितने भी सारे बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग कर लेते हैं और दे विल बी हैवीली डिपेंडिंग. बैट्समैन की फॉर्म भी है उस तरीके से. पॉल स्टेलिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है बट ही इज़ अ डेंजरस कस्टमर, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने एक मैच में वेस्ट इंडीज़ को पढ़े हैं. वो अगर आज भी उनको चेज़ में वो ऐसा स्टार्ट दे देते हैं, एंड देन आई थिंक टकर अच्छी फॉर्म में है, टैक्टर है उनके पास, फिर उनके कप्तान ने अच्छी इनिंग एक खेली हुई है, कैम्फर ने 1-2 इनिंग्स बीच में खेली हैं, तो थोड़ी उनकी बैटिंग लाइनअप लंबी है. दे बेसिकली दे विल बी एक्सपेक्टिंग कि हम कहीं अगर 150-160 तक भी न्यूजीलैंड को रोकते हैं तो वो they will fancy their chances कि वो हम चेज़ कर सकते हैं. I think they are playing to their strength. Let's see how New Zealand performs. कैसे न्यूजीलैंड कोशिश करेगी कि जो एवरेज स्कोर यहाँ पे है 180 प्लस करने की कोशिश करेंगे और डिफेंड करें. और न्यूजीलैंड की मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ है वो चेज़ नहीं है. उनकी स्ट्रेंथ भी रन्स ऑन द बोर्ड है, क्योंकि बॉलिंग में ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं. जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग अटैक बन जाता है. Wasim, the New Zealand playing 11, take us through, please. yeah, it's the same team as the previous game. Conway, Alan Finn, we are wanting. All of us चाह रहे हैं कि ये स्कोर करे because exciting है. Skipper, lots of people talking about his rotating the strike, but he's the gel. And then Glenn Phillips is in tremendous form. Mitchell, Neesham, he can play big shots. Then Centner at number 7, so the at 8, and then 3 fast bowlers, Sadi, Ferguson and Trent Boult, who are all 3 of them are a really good nick. All right, and here comes the Ireland team. आप दोनों में से कौन, Shoaib, Waqar, both of you can do this together.
दो में गिची ला दे नहीं करना। ये उनके कैप्टन हैं स्टर्लिंग टक्कर, और इनमें से जब 2 रन्स बनाते हैं तो ये अच्छा टारगेट जो है वो दे भी देते हैं, और जब चेस भी कर रहे हो तो काफ़ी हैंडी हो जाता है। टेक्टर, कैंपर, डॉक्टरल, डिलाने, इन पे ये जो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। डायर, मकार्टी, जॉश लिटल, हैंड, ये उनका अटैक है और दे हैव बीन इन गुड फॉर्म। तो आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन 2 गुड टीम्स। आयरलैंड ने टॉस जीता है, यही वो चाहते थे, और आई गेस अब अर्ली विकेट्स लेंगे तो दे कैन पुट सम प्रेशर ऑन न्यूजीलैंड टीम। Waqar, do you smell an upset coming here? No. Okay. All right, we're going to talk about that when we get to the expert predictions. इस वक्त हम लेते हैं एक और break दोस्तों. When we come back, there is more on the other side. Don't go away. Keep watching eSports and Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and we're taking you to Adelaide today for the first game up. Ireland ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान है। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का। राइट जी, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस। मिसबा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू टुडे। पहले मैच के लिए न्यूजीलैंड, एनजी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। All right, safe bet. Wasim. I'll think out of the box, New Zealand and Australia. Think out of the box. Right. Waqar. I'll think from the box, New Zealand, Australia. New Zealand, Australia, and Shoaib. I'll think out of the box. Ireland, Australia. Out and In in. Ireland, Australia. Same. New Zealand, Australia. All right, Janab. New Zealand, Australia. That is it. And those are your expert predictions brought to you by Olivia. Right, that's the situation now. कोई अपसेट के चांसेस नहीं है। जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस आप सबकी तरफ से आई हैं वो बड़ी नॉर्मल आई हैं। प्रेडिक्शन की है, लेकिन पता नहीं क्यों पहले मैच में मुझे क्या लग रहा है? है कि विलियमसन परेशान लगा है। क्यों परेशान सुता ना होगा क्यों लगा? मार्जिन छोड़ना चाह रहा है अपने लिए। नहीं, उन्होंने कॉर्नर वाला प्लॉट मैं तो क्या वेस्ट ओपन। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि आयरलैंड बिल्कुल प्रेशर फ्री है और न्यूजीलैंड पे ठीक ठाक प्रेशर होगा इस मैच का, तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकती है कि आयरलैंड इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है कहीं ना कहीं। अगर कहीं अंडर प्रेशर कर लिया न्यूजीलैंड को अर्ली ऑन, तो उनके लिए ये डबल इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो उनके लिए मस्ट विन गेम है, और दूसरा फिर जाहिर है कि आपने वर्ल्ड कप जब आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो आपके होते एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर होता है कि आपने जीतना है। पाकिस्तान का आखिरी मैच कब है? लास्ट डे बिफोर द सेमीफाइनल। आई थिंक सो। Last 2 दिन day पहले before. जो गैप है ना बीच में 2 एंड दैट इज व्हाट मिडिल गेम, तीन मैचेस हैं उसमें, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। सो या can't wait for that because that's going to be a very important. It's going to be important match as well. Bangladesh, you know, we clash with Bangladesh, and then we're hoping for the best with rain and averages and net run rates and everything. Ireland, of course, Misbah, आपने अच्छी चीज़ point out की कि Ireland के ऊपर कोई pressure नहीं है आज, and that puts a lot of pressure on New Zealand. ये जरा एक दफ़ा point table देखते हैं इस group का दोबारा. What happens to New Zealand in the event if they lose to Ireland today? I mean, we don't know, but just in case. Misbah, work this out for us. They still have a chance They to still have a qualify if chance. they lose, but they will rely on the other teams. फिर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई टीम हारेगी तो फिर ये फिर भी थ्रू हो जाएंगे क्योंकि नेट रन रेट ये चले जाएंगे। अगर वो जीत गए तो ये बाहर हो जाएंगे। Ireland नहीं, अगर न्यूजीलैंड का ये 5वां मैच है, अगर ये मैच हार जाती है तो इनके 5 ही पॉइंट रहेंगे, 5 रह जाएंगे, तो इनके भी चांसेस हैं बाहर होने के। यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये हारते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड हार जाएगा, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर हार गया जस्ट इन They केस, stay on 5. लेकिन वो ऐसा मैच नहीं हारेंगे कि बड़े मार्जिन से हारेंगे आप आयरलैंड से। सिर्फ ये कहें कि मैच हार गए हैं जी, उसके बाद आ गया जी ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, वो भी 5-5 पे बैठे हुए हैं, वो दोनों जीत गए। गए तो वो और वो पहुंच दोनों जाएंगे। तो वो दो जीत गए तो वो दोनों पहुंच पहुंच जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हार गए तो देयर इज वेरी बिग चांस कि दे विल गो आउट ऑफ द इसीलिए टूर्नामेंट। मैंने ये बात पहले तो की ये है। सारे ये matches बहुत important हैं। प्रेशर इस मैच का। आयरलैंड बिल्कुल
कोई प्रेशर नहीं आयरलैंड पे, Change और वो करें सर, ऐसे ही खेलेंगे prediction जैसे change वेस्ट करें। इंडीज की प्रेडिक्शन चेंज इनकी हाँ, change वो करें ना, मतलब Ireland का। जस्टिफिकेशन के बाद इतनी जस्टिफिकेशन के बाद चेंज होती यार है। कर दो जेड़ा तुसी प्लाट ले लेना मेरे ले जनाब आयरलैंड आ गया मिसबा के लिए वी पुट दैट सनी डे आउट देयर लुक्स रियली रियली सनी वेदर अभी कुछ देर पहले हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे 19 डिग्रीज टेम्परेचर है वहाँ पर वेयर इट्स ब्यूटीफुल डे इट्स सनी गुड डे एंड दिस प्लेस इज रियली एडलेड के बारे में वसीम बताएं जरा आप इट्स अ स्मॉल सिटी ब्यूटीफुल सिटी एक ही इनकी मेन रोड है जिस पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं देयर इज अ रिवर इन द मिडल ऑफ द सिटी and you can walk around beautiful gardens and it's called city of churches and chapels as Chapel Brothers. आप भी जब आते हैं स्टूडियो तो आप भी एक रिवर क्रॉस करके आते हैं मलीर नदी आपने जो Yeah, Maleer Ganda Nala. नहीं नदी है वो भाई They call it Nadi, but it's not. Why are we talking about this? Bradman is also Is from, Adelaide. from Adelaide. South I played a lot of cricket here. in this ground in this very on ground this very ground. And yeah. from the city center, about half an hour drive, 20 minutes drive to the beachfront. Right. It's a beautiful coastline. And then the right side is all these famous wineries जो इनकी हैं, Barossa Valley, McLaren Vale. They're world famous. All the top restaurants are there as well. और होटल से भी वॉक है there's a To the ground. river के ऊपर से उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक ब्रिज बनाया हुआ है जिसको you just cross that mainly hotels भी Usually you वहीं walk पे to हैं. the ground from You there. walk to We the as ground. commentators, we always walk. And you walk with the crowd. It's very beautiful. और बहुत कम ग्राउंड्स हैं जहाँ ड्रेसिंग रूम जो है वो साइड पे हैं ऐसे सामने नहीं है तो इस ग्राउंड पे बिल्कुल साइड पे है तो आपको मीडियम पे से And भी ऐसे we- लग रहा है कि I 150 think वाला कि ग्राउंड है 99 टूर पे हमारा 4-day गेम था वहाँ एडलेड में इसी ग्राउंड में उसके जो पीछे हम दोनों नहीं थे खेल रहे तो उसके जो पीछे गोल्फ कोर्स था वी यूज्ड टू प्ले गोल्फ जो टीम खेल रही होती थी नहीं Yeah, because we weren't playing that 4-day game. अच्छा so you were just golfing around. गोल्फिंग जावर सईद साहब मैनेजर थे वो देखते थे और हम दोनों जाते थे 18 होल खेल के आते थे That's fantastic, you know. अभी भी हम Don't वैसे tell golf खेल anyone, सकते please. Huh? हैं। Tell you what? Tell what? Don't tell anyone we did that. चले. You know what? I tell you what. We can go and sneak out for a game of golf for car if you want. No, I have to watch these need to games. sleep. They're important All games. right. With that, folks, we're going to take. Professional. Yeah, very professional, Waqar. Really, very professional. आई थिंक वो ग्रीन रूम में भी एक आधा कैमरा लगाएं पता चले जी सबको पता चल जाएगा बहुत कुछ पता चल जाएगा ऑलराइट दोस्तों दो मैचेस हैं आपसे कुछ लम्हात बाद हम आपको लेके चलेंगे बराह रास्त पहला मैच आप देखेंगे आयरलैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड उसके बाद दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला अफगानिस्तान है और आप लोगों से हमारी पेविलियन में मुलाकात होगी एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द टू गेम्स कीप वॉचिंग ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स विल सी यू लेटर